دی گیسٹ آف آنر کی بدولت جناب یہ افتخار و عزت بخشی جو تشریف فرما ہوئے، ہم ان کو اس شعر کے ساتھ میں چمن میں آمد آمد ہے، بچھایا ہے کمر نے چاندنی کا فرش، ہر طرح کی بے شرح قوانینوں کے باوجود آج وہ آئے تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا۔ وہ صرف 1 منٹ میں اختصار کے ساتھ اپنی بات کو رکھیں گے۔ ہمارے اے ڈی سی صاحب جناب بشارت احمد انقلابی صاحب ان کے ساتھ آئے ہوئے، بہرحال ہمارے یہاں پہ جو ڈائٹ پرنسپل جناب گلزار حسین سیکرٹری صاحب نے پہلے ہی 1 منٹ دیا ہے، تو نہایت ہی خوشی کا مقام ہے کہ اور میں آپ نے بیک سائڈ ضرور لگائے اور روزانہ اس کو دیکھیں کہ میں کتنی تنخواہ لے رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس وہ بچے آتے ہیں کہ جن کا صرف اس مالک کے سوا کوئی نہیں ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک فوجی جاتا ہے تو اس کے پاس بندوق ہے، اس کی وردی ہے، اس کی ٹوپی ہے، ہم دور سے یہ کہتے ہیں کہ یہ فوجی ہے۔ تو میں یہ آپ کو میسج دیتا ہوں کہ جب بھی ہم سکول جائیں تو وہ تمام ہتھیار ہمارے پاس موجود ہوں کہ جس سے ہم بچوں کو پڑھائیں۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہتا ہوا، میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چند ہی دنوں میں یہاں ونٹر جو اسکول کھلنے والے ہیں، تمام اساتذہ جو ہمارا 1 سال کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کریں۔ آج کی کنونشن کا تعلق صرف اور صرف یہ ہے کہ استاد کا کمیونٹی میں کیا رول ہے۔ میں آپ تمام سے یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک ایک استاد کا تعلق ہے، استاد کو ضروری ہے کہ کبھی بھی کسی سے کوئی بات وہ اپنے اوپر سننے کے لیے تیار نہ رہے، لیکن سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں استاد کی عزت، استاد کا وقار، یہ ساری چیزیں اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں، لیکن دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو کہیں آج کی سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت زیادہ بھی ہو گئی ہیں کہ ہر جگہ استاد پہ انگلی بھی اٹھائی جا رہی ہے۔ پہلے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہدہ ہمیں یا جس فرض کے لیے ہمیں چنا ہے اسے صحیح طرح سے نبھایا جائے۔ رائٹس ہوتے ہیں وہاں ڈیوٹیز بھی ہیں، اور جہاں ڈیوٹیز ہیں وہاں رائٹس بھی ہیں، جہاں حقوق ہیں وہاں فرائض ہیں، جہاں فرائض ہیں وہاں حقوق ہیں۔ تو یہ باتیں لازم ملزوم ہیں، دونوں ڈسکس ہونی چاہیے، اور وہ یہاں بخوبی ڈسکشن ہوئی۔ میں آج کے اس پروگرام کے بیچ میں جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پلاننگ آفیسر ازرار حسین شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تو جائیے۔ علم واقعی بہت بڑی نعمت ہے، اور میں یہ بات یہاں اس لیے بھی کہوں گا کہ یہاں 95% پلس عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہے کہ جس مذہب سے، جس پیشے سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہاں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، یعنی فرض ہے۔ علم ہے تو ملٹنسی نہیں ہے، علم ہے تو جہالت نہیں ہے، علم ہے حق اور باطل ہے، یعنی پہچان جو ہے حق اور باطل کی ہمیں ہو جائے گی۔ علم ہے تو حلال اور حرام کو پہچانے جائے گا، علم ہے تو اللہ کا خوف ہوگا، علم ہے تو ٹیچر ایک بہترین ہوگا۔ ایک بہترین ٹیچر وہی ہوتا ہے جسے پہلے خود اپنے آپ پر عبور ہوتا ہے، کہ جب وہ کلاس میں جاتا ہے اگر اس کو یہ عبور ہے کہ میں پڑھانے کیا جا رہا ہوں، اگر عبور ہے یقیناً بچے کی سمجھ میں آئے گا۔ اگر ٹیچر کو ہی
पता ही नहीं है कि मैंने क्या पढ़ना है, सिर्फ बुक्स खोलो और वो उस चीज को एक्सप्लेन सही तरीके से नहीं कर पाएगा। लिहाजा ये स्टेज इसीलिए है, हमने अपना फर्ज देखना, हमने अपने फराइज। लोग बातें करते हैं मगर जब हम काम करेंगे वो काम दिखेगा। कभी कभी टीचर पर उंगली भी उठती है, मगर वो बदकिस्मती भी है। कुछ टीचर हमारे भाई जो कुछ होते ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। टीचर की जो मैक्सिमम, परसों ही हम डी साहब से, मोहतरम बुशारत साहब से बात कर रहे थे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज जो है ये जो टीचर है, क्योंकि हम लोगों ने जंग आलूदा तालों को खोला है। जो स्कूल बंद थे, जहां जाने में डर लगता था, पढ़ाई तो दूर, टीचर अपनी ड्यूटी अगर वहां होती थी वहां जाने में डर लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। उस दौर में हम लोगों ने वो स्कूल के ताले खोले और हमने बच्चों को लाया और इनरोलमेंट बढ़ाई और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दिए। रिजल्ट जो है ये कही हुई बात नहीं है। आप देखें अल्लाह के फजल करम से आज हमारे स्कूलों के रिजल्ट जो है 100%। कोट एक ऐसा जोन है, दिस इज अ लाइव हॉटेड जोन। यहाँ दिन दिहाड़े कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है। मैं जब लास्ट ईयर आई प्रमोट होके, हो सकता है मैं भी यहाँ से भाग जाती, लेकिन इसी फोरम की वजह से मुझे एक लाइव स्पोर्ट मिला। बिल्कुल इनका जब इन्होंने कॉल की तो मैंने अटेंड की, जब इनके मसाइल थे तो मैंने वहां पे इनको सुना और मुझे इनसे सपोर्ट मिलती रही। तो उसकी वजह से मैंने भी यही डिसाइड किया कि इट इज बेटर टू लिव हियर रादर टू लीव दिस प्लेस। तो बाकी ऐसी बात है, मुख्तसर सी बात कहूंगी आपसे कि हमारा टीचर कोई ऑफिसर नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी बेसिकली ऑल आर टीचर्स, लेकिन टीचर बनना बहुत मुश्किल बात है। यही एक डिपार्टमेंट है। If there had been no education department, other department would have been existence. No teacher. If there had been no teacher, no doctor, no architect, no engineer, no other department. So this is the basic department. I would like to say that this is the key department. हमें बहुत बड़े अरसे के बाद 2019 में हम डिस्टर्ब रहे ड्यू टू आर्टिकल 370 और ये 35A, और उसके बाद ये बंद, उसके बाद स्ट्राइकिंग, फिर उसके बाद 2020 तो बहुत बुरा गया। और वंस अगेन अगर कुदरत ने हमें एक मौका दिया है कि हम यहाँ इकट्ठे हों और कुछ करें, और सबसे बड़ा पेशा यही है जो हमें मिला है। पहले कि मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें मौका दिया इकट्ठे होने का, वरना सूरत हाल ये है कि यहाँ इकट्ठे होने को तरस चुके हैं लोग। और यहाँ हम न सिर्फ इकट्ठा हुए बल्कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारे काबिल तरीन अफीसर में से, काबिल तरीन अफीसरान में से बशारत साहब का नाम बरसरे फरिश्त आता है और वो यहाँ बैठे हुए हैं, इस कॉन्फ्रेंस को इतनी देर से सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बढ़ के इस कॉन्फ्रेंस की अजमत और कोई भी नहीं है। यहाँ चीदा चीदा हजरात तशरीफ़ रखते हैं, यहाँ आप जैसे काबिल तरीन उस्ताद इकराम तशरीफ़ रखते हैं। मैं कतन मुतफिक नहीं हूँ। लोग यहाँ आके कह देते हैं हमारे टीचर काम नहीं करते, मैं इससे हरगिज़ मुतफिक नहीं हूँ। मैं पिछले 5 महीने से आपके डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा ओहदा है उस पर काम कर रहा हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करने वाले लोग हैं तो वो हमारे टीचर हैं। और मैं अगर आपको मिसाल दूँ तो ये कह सकता हूँ कि सिस्टम, जो पूरा सिस्टम है हमारा स्टेट का, उनकी रगों में हमारा खून दौड़ता है और इस तरह दौड़ता है जैसे आपने यहाँ बहुत सारे अशार सुनाए, तो मुझे तो बस इतना याद है कि दौड़ता है रगे अशार में शायर का लहू, दौड़ता है रगे अशार में शायर का लहू, वरना अल्फाज तो बेजान हुआ करते हैं। कि हमने क्या दिया और क्या नहीं दिया। इसी ज़िम्मन में हमारी 2 तरह की ज़िम्मेदारियां हम पर आयद होती हैं। एक ज़िम्मेदारी का ताल्लुक़ हमारी प्राइमरी ड्यूटी से है, दूसरा ताल्लुक़ हमारा सेकेंडरी ड्यूटी से है। और अज़रार शाह साहब से माज़रत के साथ कि जो वो ज़िक्र फरमा रहे थे, अच्छा किया इन्होंने कि ये इन्होंने इस तरह रुख मोड़ा अपनी गुफ्तगू का कि मैं देख रहा था कि
इधर बैठे हुए, पीछे तो मैं देख नहीं सकता था या दाएं बाएं, लेकिन सामने मैं देख रहा था कि मेरे कोलीग्स जो थे वो उकता से गए थे। तो उन्होंने, जब फितरी उसूल है कि जब हम दूसरे के इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो आगे से इक्वली रेसिप्रोकेट करता है और वो आपकी तरफ मुखातब होता है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि आपकी उस उकताहट को ख़त्म किया और आपकी तवज्जो जब उस तरफ दिलाई तो मैंने मुनासिब समझा कि इसको थोड़ा कैटेगराइज कर दें। मैं इनकी बात से इख्तलाफ बिल्कुल भी नहीं करता। जो इन्होंने बताया वो बिल्कुल दुरुस्त है और दुरुस्त रहेगा भी फ्यूचर में भी। लेकिन जो इन्होंने बातें यहाँ गिनवाई, इनका ताल्लुक़ सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से था, जो एक्सेप्शनली हमें करनी पड़ती हैं, जो ओकेजनली करनी पड़ती हैं, जो सिचुएशनली करनी पड़ती हैं। बट हमारी जो प्राइमरी ड्यूटीज़ का ताल्लुक़ है वो हमारा तालीम व ताल्लुम से है, तदरीस से है। चूँकि हम बेसिक तौर पर बहैसियत टीचर भर्ती हुए हैं, बहैसियत सेंसस ऑफिसर या इलेक्शन असिस्टेंट नहीं भर्ती हुए। वो हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी शमूलियत के बग़ैर कोई भी दूसरा काम इंजाम पजीर नहीं हो सकता। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ और सराहता भी हूँ, आपकी उस सिंसियरिटी को सलाम भी पेश करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये गुजारिश भी करता हूँ कि वो हमारी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सेकेंडरी ड्यूटीज़ हैं। हमारा जो प्राइम कंसर्न है, हमारी जो प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो हमारा काम है पढ़ाना। अब ये एक मेरे पास, आप सब के पास ये एक आला है, इसको मोबाइल फ़ोन कहते हैं। इसके अंदर एक यूट्यूब आता है, उसके ऊपर आप लिख कर दुनिया भर का कोई भी टॉपिक डाल दें या गूगल के ऊपर जाकर कोई भी टॉपिक लिख कर उसको सर्च लगाएं तो नीचे उसकी 10 डेफिनेशंस आ जाएंगी और पैरेलल में यूट्यूब पर 10 लेक्चर्स आ जाएंगे। मैं जब सुबह उठा को 10 बजे के आसपास, तो मैंने भी कुछ जो ये इधर कुछ लिखा विखा था तो इसी से हेल्प ली थी। जो चीफ है, जिनका दस्ते शफ़क़त हमेशा हमारे सर पे रहता है, उनका नजमुल हसन जाफरी साहब जो है लेने के लिए हाजिर हूँ। जनाब सैयद पूरा तावन दिया, हम इनके बेहद ममनून और मशकूर हैं। ये निहायती आला अखलाक और आला। उसके बाद आज के इस प्रोग्राम की जो स्पेशल गेस्ट है बरकत हुसैन साहब, भी अपना मोदी सर जो है उनका मोमेंटो पेश किया जाए। पांडे साहब चेयरमैन, जनाब यूसुफ शाह साहब और उनके साथ सारे डिग्निटीज के वो एडीसी पुंछ करने के लिए यहाँ पे तशरीफ फरमा हूँ। इसके बाद सैयद अली मुर्तजा जी पब्लिसिटी सेक्रेटरी, पब्लिसिटी सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद यूसुफ शाह साहब, शकील अहमद कुरैशी चेयरमैन, नियाज अहमद किरमानी तहसील प्रेसिडेंट मंडी टू रिसीव हिज नाउ हो गया सर्टिफिकेट। नाइजर पुंछ हो गया। रहमान सफदर साहब मास्टर HSS गर्ल्स, मोहम्मद रजा गुलशन जोन प्रेसिडेंट हरनी, ब्लॉक प्रेसिडेंट